Hello and welcome to today's session. As you know that in our last session we have started the topic of types of contract. Up to the point we discussed that the contract get divided on the basis of a validity or enforceability, on the basis of a formation and on the basis of a performance. Okay, we discussed that on the basis of a validity or enforceability, the contract may be valid contract if it have all the essential elements of a valid contract. Okay, number two, the contract may be void agreement if it is not enforceable in the court of a law ab initio, from the beginning, which is not enforceable in the court of a law, then it will be considered as a void agreement. Okay, then a contract which is initially valid but it ceases its enforceability afterwards. Okay, बाद में वो contract था किसी वजह से एनफोर्स नहीं हो सकता जो शुरू में वैलिड था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कंसीडर करते वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, then we discussed voidable contract means which is enforceable at the option of one or more party but not at the option of other or others. Okay, a contract which is prohibited by law, immoral, opposed to public policy is considered as a illegal agreement. Okay, and the last type of a contract on the basis of enforceability or validity हमने क्या डिस्कस किया था, unenforceable contract मतलब क्या था, जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, लाइक राइटिंग नहीं है या अटेस्टेशन नहीं है या विटनेस नहीं है या लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, ऐसे टेक्निकल डिफेक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बोलो, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, देन वी स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉर्मेशन. The contract get divided into the express contract. When the contract is made with the help of a words, either oral or written, it is considered as express contract. Then implied contract, when a contract is made otherwise than words, okay, it's considered as implied contract. Section 9 में दोनों की definition दी है. Okay, and now right now we are going to deal with the third type of a contract on the basis of the फॉर्मेशन. और वो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे. कौन सा बोलो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ, लेट्स सी व्हिच कंसेप्ट राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी. राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, देखो याद है मैंने आप सबको श्रीखंड वाला एग्जाम्पल बताया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर. ओके, उस श्रीखंड वाला एग्जाम्पल को भी हमने किसका एग्जाम्पल ऐसे लिया था, याद है? It was also an example of the quasi contract, श्रीखंड वाला example. हाँ, now quasi contract क्या है बोलो, it is in India called as a relation resembling to contract. मतलब वो strict sense contract नहीं है but वो contract जैसा है, resembling मतलब समझते हो ना, similar, तो which is resembling to that of a contract is considered as a quasi contract. हाँ, ये quasi contract कौन create करता है बोलो, law creates a quasi contract. Okay, rights and obligations of the parties are created by law. That is considered as a quasi contract. It is depending on the principle of unjust enrichment. अगर आपने दूसरे के एक्सपेंसेस पे कुछ बेनिफिट लिया है तो आपको उसका रिटर्न देना पड़ेगा. जैसे हमारा श्रीखंड वाला एग्जांपल, अगर आपने उस सेल्समैन का श्रीखंड खाया है तो आपको उसका क्या देना पड़ेगा बोलो, रिटर्न देना पड़ेगा. ओके, I'll give you another example. Okay, for this particular concept of the quasi contract. Another example क्या आ जाएगा, देखो, suppose one Mr. A is there. one Mr. कौन है यहाँ पे, A. he was walking from the road से चल रहा था. now एक रोड पे ना उसको एक क्या मिल गया बोलो, सोने की रिंग उसको एक रोड पे क्या हो गई, पड़ी हुई मिल गई. now इस A को कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि वो रिंग उठाए. but the moment A take the ring in his hand, तो वो मोमेंट पे वो कौन बन गया बोलो, A. he become the finder of the goods. जैसे उसने अपने हाथ में रिंग ले ली, इसका मतलब A कौन बन गया बोलो, A बन गया फाइंडर ऑफ द गुड्स. अब इस A का ऑब्लिगेशन है, क्या ऑब्लिगेशन है बोलो, रियल ओनर को फाइंड आउट करे. A का ऑब्लिगेशन क्या बन जाता है बोलो, रियल ओनर को फाइंड आउट करे एंड देन उस ओनर को वो रिंग क्या कर दे, वहां पे दे दे. रियल ओनर को फाइंड आउट करे और उस ओनर को रिंग क्या कर दे, वहां पे दे दे. जब तक रियल ओनर नहीं मिलता है तब तक उस रिंग की एज ऑफ उसकी खुद की है केयर वो क्या करे, वहां पे रिंग की ले ले. दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ, किसका ऑब्लिगेशन है बोलो, फाइंडर का, मतलब ए का. और अब इस ओ का ऑब्लिगेशन मतलब ओनर का ऑब्लिगेशन क्या होगा, इस ए को उस रिंग को संभालने में और रियल ओनर को ढूंढने में जो खर्चा लगा, एक्सपेंसेस लगे, वो एक्सपेंसेस
इस रियल ओनर को किसको देना पड़ेंगे बोलो, ए को देने पड़ेंगे। हाँ, अब 1 मिनट के लिए सोचो, ये ए और ये रियल ओनर, हाँ, क्या एक दूसरे को जानते हैं? क्या इनका कोई ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट ऐसा कुछ था क्या वहां पे? कुछ भी नहीं। बट लॉ क्रिएट्स ऑब्लिगेशन ऑन द फाइंडर कि द मोमेंट ही टेक अ रिंग इन हिज हैंड ही मस्ट फाइंड आउट द रियल ओनर, उसको रियल ओनर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जैसे ही रियल ओनर वहां पे क्या हो गया बोलो, मिल गया, और ए ने उसकी रिंग उसको हैंड ओवर कर दी, रियल ओनर का ऑब्लिगेशन है कि उसको एक्सपेंसेस ऑफ फाइंडिंग द ओनर एंड एक्सपेंसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द गुड्स क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। हाँ, सो दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ओके, लेट्स सी। देखो, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं बोलो, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहां पे। ओके, डिड यू गेट? अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या है बोलो, रिजेंबल अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जैसा, कॉन्ट्रैक्ट को सिमिलर है वो। हाँ, इट इज अ क्रिएटेड बाय लॉ। कौन क्रिएट करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? लॉ। हाँ, द लॉ क्रिएट एंड एनफोर्स द लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट। क्या इस ए फाइंडर में और इस और रिंग के रियल ओनर में कोई एज सच कॉन्ट्रैक्ट था क्या दोनों के बीच में? कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी दोनों को राइट्स भी मिल गए, दोनों को ऑब्लिगेशन भी आ गए, राइट? फाइंडर का ऑब्लिगेशन ओनर को फाइंड आउट करे, ओनर का ऑब्लिगेशन फाइंडर को एक्सपेंसेस ऑफ सर्चिंग दे दे वहां पे। हाँ, सो लॉ क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ओके, सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अ पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, पार्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन था नहीं, बट स्टिल लॉ ने उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। ओके, बट लॉ इम्पोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द parties. Okay, let's take an example. Obligation of the finder of the lost goods to return them to the true owner or a liability of person to whom the money is paid under the mistake to repay it back cannot be said to arise out of the contract. In a remotest sense also. Okay, इनका ऑब्लिगेशन जो है फाइंडर ऑफ गुड्स का टू रिटर्न द गुड्स टू द रियल ओनर, या किसी को गलती से पैसे पे किए गए। ओके, जैसे कि पैसे पे करने थे किसको बोलो, राम को, और गलती से पैसे पे हो गए शाम को, तो शाम का ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो पैसे क्या कर दे, वापस दे दे। ये जो ऑब्लिगेशन है फाइंडर का या अ पर्सन whom the money is paid under the mistake, उसका ये ऑब्लिगेशन क्या नहीं है बोलो, this obligation is not a contractual, in fact it is a quasi contractual obligation. Okay, as there is no offer, no acceptance, consent, ये सब कुछ ऐसे डिसाइड नहीं हुआ था, इसीलिए these are called as a not contract but called as a quasi contract, and in India they are called as a relation resembling to contract. Okay, so got the point. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्या आ जाता है, ई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने खत्म किया, और अब हम जो डिस्कस करेंगे फोर्थ टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ई कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज इजीएस्ट। A contract which is made through the medium of the internet is considered as a e-contract. सिंपल, जिसको इंटरनेट के माध्यम से किया गया, जैसे आपने अमेज़न से एक शर्ट खरीदा तो वो क्या हो जाएगा बोलो, ई कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा। दैट्स इट। When a contract is entered into by the two or more parties using the electronic means such as an email or then it's called as a e-commerce e-contract, उसको consider किया जाता है। हाँ, in a electronic commerce different parties person create a network which are linked to the other network through the EDI, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वहां पे बनता है। हाँ, this helps in doing the business transaction using the electronic mode. They are known as a EDI contract or a cyber contract, mouse click contract, cyber contract। उसको EDR मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। क्यों बोलो, हम माउस से क्लिक करते ना, आई एग्री, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, so that's why it is also considered as a mouse click contract. So simplest way, a contract which is made through the medium of the internet are considered as a electronic means, email से किए गए contract को बोलते हैं ई contract। ठीक है। Now on the basis of performance, on the basis of formation हमने क्या क्या देखा, समझ में आ गया? First, express contract which is made with the help of a words. Okay, words may be written or oral। नंबर 2 फिर हमने उसमें क्या डिस्कस किया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
मेड थ्रू अदरवाइज देन वर्ड्स, मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था। उसका ही एक टाइप क्या डिस्कस किया हमने वहां पर, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट से किया है उसे हम बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन इज अ टाइप ऑफ अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट था। देन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक्चुअल ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन नहीं है, तो वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट रिजेंबलिंग टू दैट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन लॉ ने क्रिएट किया गया है, एंड जिसका बेस अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रिवेंट करना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नाउ ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब a contract which is made through the medium of the electronic or emails etc. such a contract are considered as a e contract. Okay, now next point देखो, on the basis of a performance of contract क्या आ जाएगा बोलो, ये भी बहुत इजी है, दोनों पार्टी ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, that is considered as a executed, your tense knowledge आ जाता है। हाँ, you agreed to pay me rupees 50 per kg for a sugar and I agreed to deliver you 10 kg sugar. Okay, so you paid me 500 rupees, I delivered you 10 kg sugar, दोनों पार्टी का अपना अपना पार्ट परफॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी क्या हो गया बोलो, एग्जीक्यूटेड। हाँ, तो कंसिडरेशन दोनों ने अपना अपना दे दिया है, दैट स्टैंड्स फॉर executed contract. The consideration is given a contract could be an act or a forbearance. When the act is done or executed or forbearance is brought on a record, then the contract is executed contract. हाँ, अभी देखो यहाँ पे एक नया वर्ड है आपको, forbearance, इसको भी थोड़ा सा समझ के लेते हैं। कभी कभी ना कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन कोई चीज ना करना भी हो सकता है। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं होगा ना, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज ना करने के लिए भी हो सकता है। वो चीज ना करना मतलब भी अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल ना, यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू आर गोइंग टू पे मी 5,000 एक्स्ट्रा apart from my regular salary and I promise that for the next 5 years I will not leave your job. हाँ, तो यहाँ पे आपका कंसिडरेशन क्या है, देखो मैं अगले 5 साल तक आपका जॉब नहीं छोड़ूंगी, उसके बदले में आपने मुझे सैलरी बढ़ा के दी है। हाँ, मतलब यहाँ पे जो फॉरबियरेंस है, फॉरबियरेंस मतलब स्टॉप टू डू समथिंग। ओके, किसी चीज को करने से रोकना, फॉरबियर। तो फॉरबियरेंस क्या हो गया बोलो, यहाँ पे कंसिडरेशन हो गया। तो लाइक मैंने जॉब नहीं छोड़ा, आपने मुझे मेरे पैसे दे दिए, मतलब दोनों ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड। एग्जांपल देखो, when a grocer sells sugar on the cash payment, it is an executed contract because both parties have done what they have to do under a contract. Simple, दोनों ने अपना अपना पार्ट क्या कर दिया बोलो, वहां पे परफॉर्म कर दिया है। सो देयरफॉर बोथ पार्टीज हैज डन देयर वर्क, सो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी क्या हो गया बोलो, वहां पे एग्जीक्यूट हो गया, दोनों ने अपना अपना रोल वहां पे परफॉर्म कर दिया है। गॉट द पॉइंट? सो ग्रोसर इन जनरल, हाँ, जो भी कैश काउंटर ट्रांजैक्शन होते हैं ना सारे, वो इन जनरल कैश काउंटर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड ही होते हैं, क्योंकि दोनों अपना अपना पार्ट इमीडिएट परफॉर्म कर देते हैं वहां पे। ठीक है, देखो क्या गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, consideration in the reciprocal promise or obligation, such a consideration is to be performed in a future only. Executory मतलब जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस कब देना है, फ्यूचर में, एंड देयरफॉर दीस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, से फॉर एग्जांपल देखो, when G agrees to take a tuition of a अच्छा pre-engineering student from the next month, G ने एग्री किया कि उसकी ट्यूशन वो नेक्स्ट मंथ से शुरू करेगा, एंड उसने एग्री किया कि वो H in consideration promises to pay rupees 1,000. तो दोनों ने रेसिप्रोकल प्रॉमिस दिया है ना, G भी करने वाला है और H भी करने वाला है। So contract is said to be executed. क्यों बोलो? It is yet to be carried out. अभी तक वो कैरी आउट हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वापस दो टाइप का हो सकता है। हाँ, एक पार्टी का पार्ट परफॉर्म करना बाकी है यूनिलैटरल, दोनों का बाकी है बायलैटरल। हाँ, देखो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, unilateral contract is a one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. दूसरे पार्टी का obligation अभी भी पेंडिंग है। हाँ, एक पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, that is unilateral. Simple. M advertises payment of an award of rupees 5,000 to anyone who find the missing boy and bring him. एम ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि उसका बच्चा गुम गया है, जो भी उस गुमे हुए बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। हाँ, as soon as B trace the boy,
and there come and executed a contract because B has performed his share of the obligation. B को जैसे वो boy मिल गया तो B ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, B के साइड से वो एग्जीक्यूटेड हो गया, बट अभी भी पैसे रिवॉर्ड मिलना है ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया बोलो, M के साइड से वो एग्जीक्यूटरी है, हाँ, एंड रिमेन फॉर द M टू पे द अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड टू द B. दिस टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बोलो, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है उसको. ओके, नाउ बायलैटरल में दोनों को अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना भी पेंडिंग है, हाँ. A bilateral contract is a one when the obligation or a promise is outstanding on both the parties. Obligation outstanding किस पे बोलो, अभी भी दोनों parties पे obligation क्या है, outstanding है, हाँ. Example, A promises to sell his plot to the B for 1 lakh cash down. A promise कर रहा है उसको 1 लाख रुपए में प्लॉट बेचेगा, but B pays only 25,000 as earnest money. B ने earnest money मतलब एडवांस मनी कितना दिया है, 25,000, and promises to balance the next day, और promise किया कि बचा हुआ next day देता हूँ. On the other hand, A ने भी क्या किया, उसको प्लॉट का पोजीशन दिया, बट अभी तक रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं हुआ, हाँ. A gives the possession of the plot to the B and the promises to execute the sell deed on the receipt of whole amount. जब आप पूरा पैसा दे दोगे मैं सेल डीड आपको कर दूंगा, मतलब दोनों का कुछ कुछ पार्ट बाकी करना परफॉर्म है ना. अभी A ने पोजीशन दिया बट सेल डीड करके नहीं दिया, B ने क्या दिया, 25,000 दिए बट पूरी अमाउंट नहीं दी है, हाँ. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A एंड B क्या हो गया बोलो, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई, बिकॉज दैट रिमेन समथिंग टू बी डन ऑन द बोथ साइड. दोनों साइड से अभी कुछ करना क्या वहां पे बाकी है. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को इवन क्या बोला जाता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, हाँ, क्योंकि एग्जीक्यूटरी ऊपर जो देखा उसमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है दोनों का, और बायलैटरल में भी क्या बोलो, दोनों का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है वहां पे, हाँ. So got the point. When both parties perform their part, it's called as executed. When both parties yet to perform their part, that is called as executory. Again, it's unilateral and bilateral. Unilateral, one party perform its performance, but another party is yet not perform. Another party's performance is outstanding. That is considered as a unilateral. And when both the parties' performance is outstanding, then it is considered as a bilateral. Okay, so देखो सबको ध्यान में आ गया क्या? We finished out this very important part from Indian Contract Act, and that is types of contract. समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको, हाँ, इट गेट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस. On the basis of validity, if all essential elements are present, contract will become valid contract. If agreement is not enforceable by law ab initio, from beginning enforceable नहीं है, it's called as a void agreement. When contract is valid initially but afterward its enforceability cease हो जाती है, it's called as a void contract. Free consent में से फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस यूज करके पार्टी की कंसेंट लिए तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होता है, मींस एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स. Illegal agreement means prohibited by law, immoral, opposed to public policy, and contract में कोई technical defect है तो it's called as an enforceable contract. Formation के basis पे when words are used in the contract, express contract either oral or written. Otherwise than words, when contract is made, it's called as implied contract. Taking a cup of a coffee from machine, etc. Example is there. Quasi contract, legal obligation is created between the parties, even though no as such offer, acceptance, etc. is there. Okay, quasi contract in India called as a certain relation resembling to that of contract. A contract which is made through the medium of internet is called as a e-contract. On the basis of performance, the contract get divided into executed and executory. When both the parties perform their part, A painted picture, B paid the money, it's called as executed contract. When both parties are yet to perform their contract, called as executory. Executory or bilateral around same ही होता है. Okay, when one party is yet to perform its performance but another party has performed, एक ही पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी, it's called as a unilateral contract. And again like a executory, when both parties are yet to perform their part, it's called as a bilateral contract. Okay, देखो सबको ध्यान में आ गया क्या? We have finished types of contract, a very important part. Now in our next session we will deal with the first essential element of valid contract. In depth हम उसको डिस्कस करेंगे. That is, we'll discuss the concept of the offer in depth, in detail. Okay.